Exercise 5.3 क्वेश्चन 16 पहले करने की कोशिश कर रहा हूं। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of each prize. By now, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म अगर ए ले लिया तो सेकेंड टर्म वुड बिकम a minus 20, yeah, or you can write d is equal to minus 20. Sum of 700 कितने लोग हैं? 7 cash prizes. S7 is equal to 700. They have given it to you. भाई S7 का फॉर्मूला लगा दो. S7 is equal to 7 by 2 2a plus 6d, which is minus 20. This is 700 is equal to 7 by 2 कॉमन निकाल के उड़ा देता हूँ. a plus 3 into minus 20, 100 3 into 20 minus 60, so plus 60 is equal to a. So 160 is equal to a. तो पहला प्राइस would be of 160. नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई? 20 लेस 140. थर्ड प्राइस की वैल्यू 120. फोर्थ की वैल्यू 100. पूछा क्या? सारा कुछ पूछा. वही आंसर. और इसमें यही बोल रहा है ना, स्कूल स्टूडेंट thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant two trees, and so on till 11th. There are 3 sections of each class. So class total number of trees, how many trees were planted? तो पहले नंबर निकालने की कोशिश करो. So it would be 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 till 12, and each has 3 sections. So 3 into this, यही आएगा भाई. Now you sum up, summation करना पड़ेगा total number of trees निकालने के लिए. So n is 12. 12 by 2, 2a, so 2 into 1 plus 11, and d is 1. So 3 into 6, 2 plus 11, 13. तो 234 प्लांट्स होंगे. क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन 18 देखना भाई. 18 में डायग्राम भी बना हुआ है भाई. Now what they are saying, A and B starting spirals बन रहा है. Each of radii is 0.5. भाई पहला R1 is equal to 0.5. नेक्स्ट हाफ जो बन रहा है R2 is equal to 1. नेक्स्ट हाफ बन रहा है R3 is equal to 1.5, and so on, as shown in figure. What is the total length of
spiral made up of 13 consecutive this. तो आप क्या निकाल सकते हो भाई, लेंथ अगर यहां से लेके यहां तक करें तो A1 would become by 2 pi r पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है, so pi r is the semicircle का पेरीमीटर, so A1 would become pi into 0.5, A2 would become pi into 1, A3 would become pi into 1.5 and so on till, तो आप निकाल लो D, you can take out pi minus 0.5 pi, so D is equal to 0.5 pi, N is equal to 13 और A पता ही है भाई, so sum of 13, it is 13 by 2, 2A, 2 into 0.5 pi plus 13 minus 1, that is 12, and D is 0.5 pi. So 13 by 2 pi plus 6 pi. 13 by 2 into 7 pi. 13 by 2 into 7 into 22 by 7. ये cancel 11 और it is equal to 143 सेंटीमीटर. भाई समझ में आया भाई? भाई ये 18, 19, 20 all three of them are very much important भाई. Now स्टार्ट में सबसे पहला जो दे रखा है A1 I can write it as 20, they have given you. सेकेंड रो में 19 पूछ रखा है, थर्ड 18 दे रखा है, बोल रहा है इस तरह से स्टैक चलते जा रहा है. दे हैव आस्क्ड यू द नंबर ऑफ रोज, तो n की वैल्यू तो पूछ रहा है, ये बड़ा क्लियर है, तो इसका मतलब n 200 तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, टोटल नंबर वो दे रखा है, इट इज दे हैव गिवन यू 200. नाउ फॉर्मूला लगा दो भाई, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 d. N by 2, 2 into a is how much? 20 plus n minus 1, d is how much? Minus 1. ये लिख देंगे 200 is equal to n by 2. This is 40 minus n plus 1. 400 is equal to 41 n minus n square, or n square minus 41 n plus 400 is equal to 0. जैसे फैक्टराइज कैसे करेंगे? दिख रहा है यार बड़ा आसानी से, 25 और 16. ओके, ठीक है, so n square minus 25n minus 16n plus 400 is equal to 0. So n common, n minus 25 minus 16 n minus 25 is equal to 0. N minus 25 n minus 16 is equal to 0. So n is equal to 25, n is equal to 16. तो ये क्या निकला कि ये लास्ट रो में इतने इतने होंगे, इतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए. बट क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, क्वेश्चन आस्क्ड इज हाउ मेनी are there in the last row.
यही पूछा ना, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो उसके लिए an निकालना पड़ेगा, तो 825 निकालते हैं। (24 into -1) 20 और -4, सो -4 आया। भाई तुम्हारे से पूछ रखा है वो, ये नहीं पूछ रहा कितने नंबर ऑफ रोज हैं। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। मैथ्स एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कर लेते हैं भाई, ये चौथी पांचवी में सीख रखा है आपने। दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी लॉग्स वुड बी इन द लास्ट रोज। इसमें -4 आ रहा है, और इसमें अगर कर रहे हैं 15 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 5। भाई नंबर ऑफ लॉग्स कैनॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। सो नंबर ऑफ रोज 25 का पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ रोज इज 16, एंड लास्ट रो में कितने होंगे, दैट इज 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन दे रखा है उससे कई गुना आसान है। अपार्ट फ्रॉम, अगर आपने हिंट ना देखा हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा। आप पहला पोटैटो देखो भाई, कितना टाइम लग रहा है। इस जगह पे बकेट रखा हुआ है, दे आर राइटिंग 5 मीटर पे पहला आलू है। भाई पर्सन गया और वापस आया, कितना आया, कितना मीटर रन किया, 10 मीटर रन करेगा भाई। नेक्स्ट वाला आलू देखना कहाँ पर है, अनदर 3 मीटर अवे। फिर यहां से रन किया यहां तक और वापस आया, तो कितना आया भाई, 5 + 3 8, 8 + 8 16। नेक्स्ट वाले के लिए और 3 मीटर, एक और आलू यहाँ है, कितना आ गया, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 11 22। भाई ऐसे कितने आलू पिक करना है, टिल 10 टर्म्स ऐसे आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो भाई टोटल डिस्टेंस मतलब इसका सम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 10, एंड s 10 आप निकालोगे। तो सम ऑफ 10 टर्म्स is 10/2 2a plus 9 into d। तो आंसर आ गया, पता नहीं क्यों दिक्कत हो रहा था। 2 into 10 20 plus 6 into 9 54, 74, 5 4s are 22, carry over 35, so 370 meter is the total distance which is run. For exercise 5.4 का first question देखना, which term of the AP this is first negative term। भाई नेगेटिव का मतलब होता क्या है भाई, 121 117 113 डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रखा है, सो a is 121, d is -4,
और आपसे पूछ क्या रहा है, an is less than 0, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और n की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो a is 121 plus n minus 1, d is minus 4, this whole thing should be less than 0. भाई n की वैल्यू, ये 4n आ गया, सो n शुड बी ग्रेटर देन 125 बाई 4, 4 से एक कटेगा तो आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 1.25। भाई n की वैल्यू ग्रेटर देन 31.25, भाई n की वैल्यू 31 के बाद 32 ही होती है, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, लीस्ट वैल्यू पूछ रखा फर्स्ट, तो लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 32। समझ में आया भाई ये? नाउ नेक्स्ट देखना भाई, अगेन सेकंड क्वेश्चन। भाई अगर इफ यू रीड क्वेश्चन प्रॉपरली यू वुड बी इजीली एबल टू डू दी क्वेश्चन। भाई अगर आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो एक जरा नहीं हो सकेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन एपी आसान चैप्टर कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर दिस टू बी अ वेरी इजी चैप्टर। Sum of third and seventh term of an AP. So third plus seventh term is 6। केवल क्वेश्चन में जो जो चीज दे रखा है वही लिखने की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। सो a3 into a7 is equal to 8। पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। दे आर आस्किंग यू S16 की वैल्यू कितनी। और S16 मतलब आई रिक्वायर a एंड d की वैल्यू, देन ओनली आई कैन सॉल्व। वही यही लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 6। सो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6, पूरा 2 से डिविजिबल है। a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, और a is equal to 3 minus 4d also I can write। दूसरा पहुंचना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब a plus 2d into a plus 6d is equal to 8। ये वैल्यू पहले यहाँ पुट कर दो, 3 minus 4d plus 2d, 3 minus 4d plus 6d is equal to 8। So this is 3 minus 2d and this is 3 plus 2d. So 1 is equal to 4d square. So d square is equal to 1 by
4 और d is equal to plus minus half। भाई अब इसका मतलब ये हुआ कि d की वैल्यू निकल गई, तो दो आएंगे भाई आपके पास a और d की वैल्यू। when d is equal to half, तो a की वैल्यू कितनी होगी, a is equal to 3 minus 4 into 1 upon 2, so a is equal to 1। मुझे चाहिए s16, so it is 16 by 2, 2 into 1 plus 15 and d is 1 by 2, तो 176 आंसर आ जाएगा। फिर अब लिखते हैं when d is equal to minus half, a की वैल्यू would become 3 minus 4 into minus half, ये 2, so 3 plus 2 हो जाएगा, so a is equal to 5। sum of 16 terms is equal to 16 by 2, 2 into 5 plus n minus 1, so 15, and d is minus 1 by 2. This is 8, 10, 20 minus 15, 20 minus 15, it is 5 by 2, 4. So this is equal to 20. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, पहले रग सीढ़ियों को बोलते हैं भाई जो लैडर में बना हुआ होता है ना। ये मैं बड़ा पूरा डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में बनाने के लिए जरूरत नहीं है पूरी डायग्राम, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई एम ट्राइंग टू मेक इट। नाउ इसके अंदर जो वो बोल रखा है कि सीढ़ियां बनी हुई हैं भाई, तो एक तो ऐसे बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। और 2.5 मतलब बोल रहा है फर्स्ट रग और यहां तक में जो डिस्टेंस है दिस इज 250 सेंटीमीटर। Now, what you require to observe in this case is what is the gap between the two। ये गैप कितना दे रखा है, ये गैप कितना है भाई, ये 25 सेंटीमीटर हर एक के बीच में गैप है, ये भी 25 सेंटीमीटर है। नाउ नंबर ऑफ गैप्स काउंट करो, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बट नंबर ऑफ रग्स काउंट करो जो रेड में बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दिख रहा है। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हाट, अ लैडर इज
has rugs 25 centimeter apart. The rug decreases uniformly in length from 45. This is 45 centimeter and this is 25 centimeter. ये बोल दिया. If the top and the bottom rugs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rugs? तो ये रेड पार्ट में जितने भी रग्स हैं उसकी लेंथ पूछ रहा है. नाउ लेंथ के लिए n की जरूरत है भाई. नंबर ऑफ रग्स निकालने पड़ेंगे. तो नंबर ऑफ रग्स निकालने के लिए ये हमेशा ही होगा भाई. ये नहीं कि यहाँ 10 था तो मैंने बना दिया. आप 2-3 भी बनाओगे तो भी आपको दिख जाएगा. अगर मैं ये बनाता कि ये 3 है तो आपको अपने आप दिख जाएगा. अच्छा 2 गैप है तो 3 रग्स चाहिए, एक ज्यादा चाहिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि लोग यहाँ पर 10 लिख के आते हैं. 250 by 25 plus 1 हमेशा एक ऐड करेंगे अगर बीच के डिस्टेंसेस हमारे को दिए हुए होंगे. सो दैट गिव्स मी 11 और n की वैल्यू इज इक्वल टू 11. अब ये याद रखना भाई कभी भी ये छोटी चीजें स्ट्राइक करते रही हैं और इसके बाद फिर मुश्किल होती है. नाउ इट इज वेरी इजी टू डू दी क्वेश्चन. सबका सम निकालना पड़ेगा. तो s इज इक्वल टू 11 by 2 2a. so 2 into सबसे smallest is it is 45. सॉरी 2a लगा के फायदा ही नहीं है. a plus an वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं. ठीक है. what formula I am applying is n by 2 a plus an because all the things we know in this case. So it is 11 by 2. A is 45 plus an is 25. So it is equal to 11 by 2 into 45 plus 25, 72, 35. So answer is 5, 385 centimeter. Now next वाला देखना. The house of a row are numbered consecutively from 1 to 49. So 1, 2, 3, dot 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 till 48, 49. यहाँ तक बोल रखा है. Show that there is a value of x. बोल रहा है कोई एक वैल्यू x है equal to the sum of the number of houses x such that the sum of number of our houses preceding this. भाई अगर ये x है तो ये वाला वैल्यू x minus 1 होगा. सो preceding this मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम. And the house number x is equal to the sum of number of houses following it. That is x plus 1 से लेके यहाँ तक. बोल रहा है ये सम और ये सम इक्वल है. अगर इसे S1 बोलूं और इस पार्ट को S2 बोलूं तो दे आर सेइंग S1 इज इक्वल टू S2. भाई क्वेश्चन में यही बोल रखा है. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that sum of number of houses preceding x. This is sum of houses preceding x. This is ये part is equal to sum of houses following it. But if you read the question properly अपने आप दिखेगा. Now यहाँ से लेके यहाँ तक this is same as sum of x minus 1 term. यहाँ से लेके यहाँ तक this is equal to sum of 49 terms. मुझे चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का. यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू दिस इज एस एक्स.
तो ये पर्टिकुलर पार्ट इज नथिंग बट S49 minus SX, एंड ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया सम ऑफ x minus 1. दिस इज दिस पर्टिकुलर पार्ट. By rest is solving, आप किसी भी तरीके से करो, it is completely up to you. I can even write SX plus SX minus 1 is equal to S49 x by 2 2a, so 1 plus x दे रखा, so x minus 1 d is also equal to 1 plus x minus 1 upon 2 2a 2 into 1 plus x minus 2 into 1. This is equal to sum of 49 terms, so 49 by 2 2a 2 into 1 plus 48 into 1. भाई इसे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा भाई, सॉल्व करना जरूर भाई इसे. Comprises of 15 steps, each of 15 meter long, is built in a solid concrete. Each step has a rise of 1.4 meter and tread of half meter. Calculate the total volume of the concrete. भाई आप फर्स्ट पार्ट का अगर वॉल्यूम निकाले, दो चीज नहीं चेंज हो रहा है, दैट इज 50 मीटर इंटू हाफ. भाई ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 का मतलब ये हुआ फर्स्ट स्टेप में 1/4, सेकेंड स्टेप में 2 इंटू 1/4, थर्ड स्टेप में 3 इंटू 1/4. ऐसे ही चलता जाएगा. कब तक चलेगा? टिल 15 इंटू 1/4. वॉल्यूम का मतलब यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. भाई हर पार्ट का ये जो आप लिखे हाइट, लेंथ, ब्रेथ, ये लिख दिया और ये सबकी हाइट लिख दिया भाई. इसे भी सिंप्लीफाई करने के लिए यू कैन टेक आउट 1/4 कॉमन. what you are left in bracket as 1 plus 2 plus dot 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 till 15 तक. यही आएगा भाई. दिस यू कैन सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ जाएगा? 15/2 2a 2 into 1 plus 14 and d की वैल्यू इज 1. ये काट लो भाई, कितना कौन मेहनत करे. इनटू 25/4 सिंप्लीफाई कर लोगे भाई ये. सो 25/4 into 15/2 into this is 14 plus 2 16 8, ये 2 कट जाएगा, that will give you the answer. इतना आ जाएगा. समझ में आया भाई ये?